Students, this is class 9th and we are on chapter number 11, that is work and energy. Today we are doing NCERT in textual question answers. Okay, so we are on page number 148. So this is page number 148 and this is the question number 1. So we have to solve all the questions of this chapter, that is in textual question answer. So what is the first question is saying, the force of 7 Newton act on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of the force. ठीक है, let us take it that the force act on the object through the displacement. What is the work done in this case? ठीक है, हमें work done find out करना है. Suppose this is an object which is moving from here to here. Clear? So this is the displacement between this and this, and that is the force that is applied on that body. So now we have to solve it. Okay, students, listen बेटा. What is the force at here? यहाँ पे फोर्स क्या है बेटा? यहाँ पे आपका फोर्स है 7 न्यूटन. ठीक है. एफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है बेटा 8 मीटर. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा? हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एफ इंटू एस. ठीक है, तो एफ हमारे पास कितना है? 7 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा? 56 जूल. ये हमारा क्या आ गया बेटा? वर्क आ गया. काफ़ी इजी क्वेश्चन था बेटा. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 149 पर. ठीक है बेटा, तो हम इसको सोल्व करते हैं. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये पेज नंबर 149 है. पेज 149, पेज नंबर 149. ये क्या कह रहा है? ठीक है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन. क्लियर? कि आप कब कहोगे कि वर्क हो गया है? व्हेन डू वी से वर्क इज डन. सो वर्क इज डन बेटा, वर्क कब होगा? वर्क इज डन when force act on an object, and the object, or you can say body, and the object body displays from its initial position. Displays from its initial position. ठीक है बेटा. Let us say I have to take an example. Suppose a body stand here. After some time, after applying some force, it displays from here to here. So this is the initial point and this is the final point, and it takes some displacement, that is s. So this is the work done. If I apply a force on that pen, then it displays from its path. ठीक है, this is called work done. Now question number 2 of page number 49. What the question number 2 is saying, write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. What we have to tell it here? Write an expression for the work done and when a force is acting on an object in the direction of its displacement. Okay, students. So work is we know that the expression for work is equal to force into displacement, because the object is moving in the direction of the force. So here theta become 0. So in the terms of it is saying that fs cos theta, and theta is 0. So cos 0 is equal to 1. So we can say f into s. So this is the work done. Now question number 3. These are the very easy questions beta. Define 1 joule of work. Define 1 joule of work. So 1 joule of work हो तो work is said to be 1 joule. Work is said to be 1 joule. वर्क को हम 1 जूल कहेंगे कब? वर्क इज said to be 1 joule if 1 Newton force displace an object through 1 meter displace an object through 1 meter
in its own direction, in its own direction. ठीक है, because we know that W is equal to F into S and we want to prove W is equal to 1. If you want to prove W is equal to 1 joule, then force must be 1 Newton and displacement must be 1 meter. ठीक है, so 1 joule is equal to 1 Newton upon 1 meter, that is 1 joule. Clear? Now next question number 4. What the question number 4 is saying? A pair of bullock exert a force of 140 Newton on a play. ठीक है, here is bullock, suppose, okay, and here is a plow, that is he is plowing, जिसको वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं. The field being plowed is 15 meter long. तो how work is done in the plowing the length होता है. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसको करने में उसने कितना वर्क डन किया. क्लियर? तो बेटा सी है, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है. फोर्स ये लगा रहा है 140 न्यूटन. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. दैट इज़ 140 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर. डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर. ठीक है, सो वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू displacement. So force is 140, displacement is 15. After multiplying we will get 2100 joule. ठीक है, now next question, that is on page number okay, this is the next question and this is the page number 152. ठीक है, page 152. ठीक है, दिस इज द पेज नंबर 152. ओके, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो व्हाट इज द, हियर वी हैव टू टेल काइनेटिक एनर्जी. तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी. क्वेश्चन नंबर 1, द एनर्जी possessed by a body, the energy possessed by a body due to the energy possessed by a body due to its motion. ठीक है, possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. It's called काइनेटिक एनर्जी. काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, एंड द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². कोई भी बॉडी अगर मोशन में होगी तो कौन सी एनर्जी की वजह से होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी की वजह से. नेक्स्ट कह रहा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. जो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया बेटा. तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये होता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन. यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ बॉडी. ठीक है, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी. क्लियर? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल. लिसन, काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है बेटा? 25 जूल. वेलोसिटी क्या दे रखी है? 5 मीटर पर सेकेंड. तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम डबल. जब वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम इंक्रीज 3 टाइम. तो उसमें 2 केस हैं बेटा, वो हमें बताने हैं. ठीक है बेटा. सो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है वेलोसिटी, तब इसका मास निकालेंगे. तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो m यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 × k अपॉन में v². तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे. जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास मास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास मास आ जाएगा m इज इक्वल टू 2 × 25 अपॉन में 25. ठीक है, क्योंकि v का स्क्वायर हो जाएगा ना. ठीक है, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 किलोग्राम. मास की वैल्यू क्या आ गई? 2 किलोग्राम आ गई. ठीक है बेटा. अब देखो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है ये.
फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि अगर जो वेलोसिटी है, इफ वेलोसिटी बिकम डबल, ठीक है, अगर पहले वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी 5 थी और ये कह रहा है उसकी डबल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सो वेलोसिटी कितनी कर रहा है ये डबल, तो हम ये इसका मतलब ये कितनी हो गई 10 हो गई, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होता है, अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ, मास कितना है बेटा 2 और वेलोसिटी कितनी है बेटा 10 × 10, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 100 जूल। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई फर्स्ट केस में। नाउ सेकंड केस में क्या कह रहा है बेटा, ये सेकंड केस में कह रहा है कि जो वेलोसिटी है ना वो 3 टाइम्स हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो 3 टाइम्स हो जाएगी तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 × 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। तो अब आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ, मास तो वही रहेगा 2 और 15 × 15, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 15 × 15 क्या होता है 225 जूल, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपको सारा समझ आ रहा है बेटा अच्छे से, काफ़ी नहीं बल्कि मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये रहा, पेज नंबर 156, ठीक है, पेज नंबर 156, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पावर को आप डिफाइन कीजिए, पावर क्या होती है। सी देखो व्हाट इज़ पावर, पावर क्या है, तो बेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पावर को कर रहे हैं, तो पावर का डेफिनेशन हम लिख देंगे सिंपली। सो पावर इज़ डिफाइंड एज, it is defined as the rate of doing work, ठीक है। जिस रेट पे, जिस टाइम के हिसाब से हम काम करते हैं ना बेटा, उसको हम क्या कहते हैं पावर, क्या कहते हैं पावर। और यू कैन से P = W/T, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इज पेज नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग डिफाइन 1 वोट ऑफ पावर, हमें 1 वोट डिफाइन करना है। तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू W/T, तो पावर 1 वोट कब होएगी आपकी, पावर 1 वोट तब होगी जब 1 जूल वर्क हम 1 सेकेंड में करेंगे, ठीक है। अब इसको हम थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि पावर इज सेड टू बी 1 वोट, पावर इज सेड टू बी 1 वोट, पावर को हम 1 वोट कहेंगे, कब कहेंगे बेटा, इफ़ इट डज 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड, 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि 1 वॉट वर्क कब होएगा बेटा, जब हम 1 जूल वर्क करेंगे 1 सेकेंड में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग टू अस, लेट अस सी A lamp consume 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is its power? ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक लैम्प है वो 1000 जूल कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड में, तो आप हमें बताइए व्हाट इज इट्स पावर, इसकी पावर क्या है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पे वर्क कितना दिया हुआ, हमें वर्क दे रखा है 1000 जूल, कितना दे रखा है 1000 जूल, और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, टाइम हमारे पास है बेटा 10 सेकेंड। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पावर दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, so you can say W/T. So put the values of this and this in this formula. So W is 1000, time is 10, 0 से 0 cancel out, तो 100 watt. This is the power. Okay, so see what is the next question. This is question number 4. Question number 4 is saying define average power, clear. And this is the last question beta, define average power. I show you so that you will see the questions again. See beta, this is question number 2, this is question number 3 and this is question number 4 now we are doing. So what it's saying, this is saying कि average power को आप define कीजिए, average power यानी कि P average को हमें क्या करना है, define करना है। तो बेटा we know that जो average power होती है it is defined as the
ratio of, it is defined as the ratio of total work done. इट इज़, बेटा जब भी किसी के सामने एवरेज वर्ड लगता है ना, तो मतलब हमें टोटल को लेके चलना पड़ता है कि टोटल उसने कितना किया, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय एन एजेंट, total work done by an agent to the total time taken, or you can say body or you can say object, that's your choice. इसका कोई कंपल्सेशन नहीं कि आप यहाँ पे एजेंट वर्ड यूज़ करो, बॉडी वर्ड यूज़ करो, ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ करो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है बेटा। इफ़ यू वांट टू राइट इट मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस एज P average is equal to total work done अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर। ओके स्टूडेंट, सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस। आई थिंक आगे कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, टेक्सचुअल, हाँ जी बस यही है। ओके बेटा, ठीक है। These are the all questions that we have to do now in textual question answers. So now students, we have to do examples of these questions. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, हम इस चैप्टर के सारे जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हम उनको सोल्व करेंगे। क्लियर बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। अब तक हमने क्या करे थे, इन टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स करे थे। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। तो एग्जाम्पल्स हम कब करेंगे बेटा, एग्जाम्पल्स हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। जो हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का, उसके अंदर हम करेंगे इसके सारे एग्जाम्पल्स को सोल्व, तो ठीक है। तो बेटा थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद। सो इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डू ऑल द एग्जाम्पल्स NCERT पेज नंबर फ्रॉम पेज नंबर 148 टू 156, ठीक है। आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल हमारा 156 पे है। जितने भी आपके सोल्ड एग्जाम्पल हैं वो हम सारे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।